ঘূৰি আহিছো বাতৰি বাজলৈ এজন জিনিয়াছৰ পৰিচয় পোৱা যায় বাল্যকালতে এই কিশোৰজনে সৰু কালতে নিজৰ প্ৰতিভাৰ পৰিচয় দিবলৈ সক্ষম হৈছিল নেটৱৰ্ক 18ৰ এই বিশেষ প্ৰয়াসত এনে কিছুমান কিশোৰৰ সৈতে পৰিচয় কৰাই দিম আপোনালোকক চাবলৈ নাপাহৰিব বাইজুছ ইয়াং জিনিয়াছ नमस्कार जीनियस जो मुश्किल चीजों को आसानी से कर दे वो है टैलेंट और जो असंभव को आसानी से कर दे वो है जीनियस और ऐसे ही नामुमकिन को मुमकिन करने वाले जीनियसेस से मिलवा रहे हैं हम आपको इस मंच के जरिए बायजूस यंग जीनियस के हर एपिसोड में हम मिलेंगे कुछ ऐसे यंग जीनियसेस से जिनकी उम्र तो छोटी है पर कारनामे बड़े 7 साल की उम्र में क्या कभी आपने सोचा कि इंटरनेशनल मैराथन भागा जाए या फिर रनिंग का नया रिकॉर्ड बनाया जाए हमारी पहली यंग जीनियस ने ये सब दुनिया को करके दिखाया है वो भी 7 साल की उम्र में किसी भी रेस से पहले मेरा एक ही लक्ष्य होता है कि अपने फिनिशिंग लाइन पर सबसे पहले पहुंचना अभी मैं 2024 ओलंपिक के लिए तैयारी कर रही हूँ और उसके लिए मैं रोजाना 8 घंटे प्रैक्टिस करती हूँ डाइट फॉलो करती हूँ और मैं टीवी वगैरह नहीं देखती बहुत कंपटीशन है आपके खेल पे ट्रैक एंड फील्ड पे बहुत कंपटीशन जब आप ओलंपिक मेडल जीतेंगे ट्रैक एंड फील्ड में इंडिया के लिए आप फर्स्ट बने पोडियम में नंबर 1 और तब मैं पीछे होके ताली बजाएंगे आपके लिए हमारी अगली यंग जीनियस है बहुत खास इन्होंने दिलचस्पी दिखाई है फॉसिल्स में और ये बन गई हैं यंगेस्ट पैलियोंटोलॉजिस्ट इनका नाम है अश्वथा बिजू Important that each and every one of us should learn something about history because we are what we come from. Hi, this is Ashwata Biju. I'm a young paleontologist of India who have collected nearly 120 specimens of fossils from 3 different beds. Hi Ashwata, come. Welcome to Byju's Young Genius. 13 years old and you are doing a study of fossils. You have something which look like rocks to me. They're actually fossils. These are fossils. Yes. Okay, now tell me when you see these fossils, you got a lot of, for the layman, for somebody who does not understand fossils, they look like rocks. So how do I differentiate? What is the average age of what you have brought for us here on the Young Genius platform? So I have bought different fossils from 3 river basins. There are the 3 different fossil fields I worked under. One specimen from Godavari River Basin and Which the is other. This is a dinosaur bone fragment This is a dinosaur bone fragment. Yes. This is 252 million year old. 252 million years old. Yes. আহিছো পৰৱৰ্তী বাতৰিলৈ গুৱাহাটীৰ হাতীগাঁও নিখা 4 বাংলাদেশী গ্ৰেফতাৰ কৰা হৈছে দালালে চাকৰি দিম বুলি আনিছিল অসমলৈ ত্ৰিপুৰাৰ পৰা বাছেৰে আইএছবিটি লৈ আহিছিল 4 বাংলাদেশী ত্ৰিপুৰাৰ সীমান্তৰে পাৰ হৈছিল 4 বাংলাদেশী নিখা 1 বজাত হাতীগাঁৱত ঘূৰি ফুৰোতে আৰক্ষীয়ে গ্ৰেফতাৰ কৰে এই 4টা বাংলাদেশীক সঞ্জু উৰফে ৰচিদ নামৰ এজনে 5000 টকাৰ বিনিময়ত সীমান্ত পাৰ কৰাইছিল 4জনকে এদিকে দেখো মোবাইল এদিকে এক দালাল চক্রে ফুরে আমি এখানে ইন্ডিয়া থেকে বলছে যে 20-25 হাজার টাকা বেতন দিবে এই কথা বললেন নিয়ে আমাকে নিয়ে আনছে কুমিল্লা এই যে বাগানবাড়ি আগারগা তালতলি মধুপুর এখান দিয়ে আমার পার করছে আর বাংলাদেশের দালালের নাম হইল রাজীব কই যে কাজ দেবো 15-20 হাজার টাকা বেতন পাবি আচ্ছা একজনের চক্রান্তে করে আমি মানে কিছু লোভে আমার ইন্ডিয়া নিয়ে না মানে ছাইরা দিছে আমরা না খায়া মানে রাষ্ট্রের দিশা নিশা না পাই আমরা পুলিশ স্টেশনে ধরা দিছি
72 সংখ্যক গণৰাজ্য দিৱসত উত্তম যোদ্ধা সেৱা মেডেলেৰে সন্মানিত হ'ল অসম সন্তান লেফটেনেণ্ট জেনেৰেল ৰাণা প্ৰতাপ কলিতা। বৰ্তমান ডিমাপুৰস্থিত সেনাৰ 34 GOC ৰাণা প্ৰতাপ কলিতাই এই সন্মান লাভ কৰাৰ পিছতে অসম সন্তান ৰূপে নিজকে গৌৰৱান্বিত হোৱা বুলি মন্তব্য কৰিছে। উল্লেখ্য যে লেফটেনেণ্ট জেনেৰেল ৰাণা প্ৰতাপ কলিতা সেনাৰ মুখ্য কোৰসমূহৰ GOC দায়িত্ব পোৱা প্ৰথম অসমীয়া আৰু উত্তৰ পূবৰ দ্বিতীয়জন লোক। গোৱালপাৰা সৈনিক স্কুলৰ ছাত্ৰ আৰু ভাৰতীয় সেনাৰ কুমাৰ ৰেজিমেণ্টৰ বিষয়া ৰাণা প্ৰতাপ কলিতাই এই শুভক্ষণত ভাৰত ভূমিক সুৰক্ষিত কৰি ৰাখিবলৈ সকলোকে সংকল্পবদ্ধ হ'বলৈ আহ্বান জনায়। এই সন্মানৰ বাবে নিজৰ পিতৃ মাতৃ আৰু শিক্ষাগুৰুসকলৰ প্ৰতি কৃতজ্ঞতা জনায় লেফটেনেণ্ট জেনেৰেল কলিতাই। ৰঙিয়াৰ যোগেন্দ্ৰ কলিতা আৰু ৰেণু কলিতাৰ সন্তান লেফটেনেণ্ট জেনেৰেল ৰাণা প্ৰতাপ কলিতা। গণতন্ত্ৰ দিৱস উপলক্ষে মই মোৰ পিনৰ পৰা সকলো 72তম গণতন্ত্ৰ দিৱসৰ শুভক্ষণত উত্তম যুদ্ধ সেনা মেডেলেৰে পুৰস্কৃত হ'বলৈ পাই বহুত সন্মানিত অনুভৱ কৰিছোঁ। এয়া মোৰ বিষয়ে বহুত গৌৰৱৰ বিষয়। এই ক্ষণত সৰ্বপ্ৰথমে মই মোৰ পিতৃ মাতৃ আৰু সমূহ শিক্ষকবৃন্দলৈ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিব খুজিছোঁ, যিসকলৰ নৈতিকতাৰ শিক্ষাই সদায় মোক প্ৰেৰণা দি আহিছে। আৰু এইখিনিতে পুনৰ আপোনালোকক লৈ যাব বিচাৰিছোঁ মিছন পানী ৱাটাৰথনৰ পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰৰ মাজত। ग्राउंड वाटर को बचाने के साथ साथ देश के लोगों को पर्याप्त मात्रा में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध हो, यह सुनिश्चित करना हम सबकी जिम्मेदारी है। यह समस्या कितनी बड़ी है इसका अंदाजा हम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट से लगा सकते हैं, जिसके अनुसार दुनिया भर में लगभग 200 करोड़ से अधिक लोग दूषित पानी पीने के लिए मजबूर हैं। वाटर टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव इसी दिशा में उठाया गया कदम है। इस पहल का उद्देश्य उचित स्वदेशी विज्ञान और प्रौद्योगिकी इंटरवेंशंस का उपयोग करके भारत के लोगों को पर्याप्त मात्रा में पीने योग्य और कृषि उद्देश्यों के लिए गुणवत्ता वाला पानी उपलब्ध कराना है। वाटर टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव के तहत हमारे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय की कोशिश है कि विभिन्न सामाजिक जरूरतों के हिसाब से चुनौतियों के मूल कारणों व उसके स्रोत का पता लगाकर उसके अनुकूल तकनीकी समाधान निकाला जाए। वाटर टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव का मुख्य मकसद यही है। हमारे वैज्ञानिकों ने ऐसी असाधारण फिल्ट्रेशन टेक्नोलॉजीज विकसित की हैं जो देश के लिए वरदान साबित हो सकती हैं। इन फिल्ट्रेशन टेक्नोलॉजीज के महत्व को देखते हुए देश भर के अनुसंधान एवं विकास संस्थानों, राज्य सरकारों, केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों व अन्य संबंधित संस्थानों को साथ लेकर एक ऐसा प्रभावी तंत्र विकसित करने की तैयारी की जा रही है जिससे लोगों तक स्वच्छ पेयजल पहुंचाया जा सके और सामुदायिक स्तर पर इसका लाभ हो। इसके अलावा हमारी कोशिश यह भी है कि पानी के क्षेत्र में कार्यरत MSME और स्टार्टअप्स को भी उपलब्ध फिल्ट्रेशन टेक्नोलॉजीज को अपनाने और सामाजिक आवश्यकताओं को पूरा करने में योगदान देने में हर तरह से प्रोत्साहित किया जाए। डॉक्टर साहब, मैं अक्षय बोल रहा हूं। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि आप खुद डॉक्टर हैं, कुछ ऐसे रूल्स बताइए जिनका पालन कर सके हम हेल्दी रहने के लिए। लोग हेल्दी कैसे रहें उसका कोई ऐसे कुछ टिप्पणी दीजिए। देखिए, स्वास्थ्य मंत्री के रूप में तो बहुत सारी बातें देश के लोगों के साथ शेयर की जा सकती हैं, लेकिन आपका कार्यक्रम उतने विस्तार से बात करने की मुझे सुविधा नहीं देता। लेकिन मैं इतना जरूर देश के लोगों को कहना चाहूंगा कि स्वास्थ्य में जो 80% स्वास्थ्य का हिस्सा है वो प्रिवेंशन है, पॉजिटिव हेल्थ है, प्रोमोटिव हेल्थ है। 20% शायद बीमार होने पे दवाई लेना या अस्पताल में जाना है। इस 80% को अचीव करने के लिए अगर लोग स्वयं जागरूक हैं, अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग हैं, तो अपनी जो दिनचर्या है,
अपनी जो डेली एक्टिविटीज हैं उसके माध्यम से अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। 3 बातें मिनिमम फोकस करने के लिए मैं सबसे कहता हूं कि साफ सुथरा संतुलित भोजन करें, जिसको मैं कहता हूं ईट राइट इंडिया कैंपेन जी। और दूसरा, अपने जीवन में फिजिकल एक्टिविटी को जरूर इनकॉर्पोरेट करें, चाहे वो आप सैर करें, चाहे वो आप दौड़ें, चाहे आप योग करें, मेडिटेशन करें, साइकिलिंग करें, जिम में जाएं, लेकिन आपके जीवन में फिजिकल एक्टिविटी जरूर होनी चाहिए। और जिस संदर्भ में इस कार्यक्रम में बातचीत हो रही है वो स्वच्छता के बारे में बहुत हुई है, और अक्षय जी और बाद में जो तो पानी एकदम सूख जाता है और फिर और जमीन के अंदर भी आपको नहीं मिलता नहीं पानी? मिलता। तो हम हमारे मतलब हमारे गांव के 2-2.5 किलोमीटर हम रहते हैं, और वहां से थोड़ा सा खड्डा करके वहां जो पानी उबलता है ना वो लेके आते हैं हम। हमारे गांव के सब लेडी हम सब मिलके जाते हैं, वो खड्डा करते हैं, और खड्डे में से वो पानी जो आता है वो 2-2 हंडे 2 हंडे इनको देते, 2 हंडे हम ऐसे लेके हम आते हैं। वैसे आप लोगों को बताऊं कि आप 2.5-3 किलोमीटर चलते हैं, वहां और भी कई जगहों पे बहुत सारे अलग अलग स्टेट्स में औरतें जो हैं वो मीलों चलते, मतलब आपको बता नहीं सकता, पहाड़ों के अंदर से चीर के वहां से जाते उस पार जाके पाणी लेणे म्हणजे ते 20-20, 25-25 किलोमीटर चालतं फक्त एक बाल्टी घेऊन पाणीचं घेऊन यायला, आणि हे ते पण काय रोज जाते हैं। मालूम है आपको कभी ज्यादा चलना पड़ता है, कभी कभी ज्यादा? आम्हाला 3 किलोमीटर अजून वरती करा। सर आम्हाला 3 किलोमीटर अंतरावर पाणी आणावं जावं लागतं, आणि सर नोव्हेंबर पर्यंत म्हणजे पाणी असते, नंतर जेव्हा मार्च आणि जूनच्या शेवटला एवढं पाण्याची क्रिटिकल अवस्था होते की सर आम्हाला रात्रभर विहिरीवर थांबावं लागतं, आणि ते पण अडगळ रात्र काय झालं? विहिरीवर थांबावं लागतं, असं? आणि ते पण सर ते पण 2 हांडे मिळणे मुश्किल आहे, आणि अडगळीची वाट दगडगोट्यांचं ते पण सापांचं आणि विंचवाचं, परत त्याची पण भीती वाटते। काही गावामध्ये अशी पण घटना घडलेल्या आहेत, काही गावामध्ये अशी पण घटना घडलेल्या आहेत सर का म्हणजे महिलांना सर्पदंशाने मृत्यू पण झालेले आहेत, आणि प्रेग्नेंट बाया पण आमच्या सोबत येतात। प्रेग्नेंट औरतें भी जाके प्रेग्नेंट औरतें कुठे सांप डस लेते हैं, जंगल में खड़े रहना पड़ता है रात को, म्हणजे 9व्या महिन्यापर्यंत त्यांना गरोदर अवस्थेत सुद्धा पाणी भरावं लागतं, ते पण डोक्यावरच। आणि सर म्हणजे कसं ओटी पोटात दुखणं, परत सूज येणं हातापायाला, आणि सर वेळेवर म्हणजे औषध उपचार पण घेता येत नाही, अख्खा वेळ पाण्यामध्ये निघून जातो, त्याच्यामुळे वैद्यकीय उपचार घेता येत नाही, आणि सर्वात महत्व म्हणजे पौष्टिक आहार पण घेता येत नाही। आपको पता है आपका नाम अलका है ना? हो। आपको पता है मेरी सिस्टर का नाम भी, माझी बहिणीचं नाव पण अलका ही है, मेरी बहन का भी नाम अलका है, और आप भी जाते हैं पानी लाने? हाँ, ती पण येते माझ्या सोबत। आप कहाँ रहते हैं? सर आम्ही पालघर। सर मी ठाणे जिल्ह्यातील शहापूर तालुक्यामधील तलवाडा गावातील मी एक आदिवासी महिला आहे। अच्छा। आप आदिवासी वहाँ तानी, आप वहाँ से हैं, तो यहाँ से यानी मुंबई से बस कुछ घंटे की दूरी है ये जो जिस इलाके की बात कर रहे हैं, एंड दे आर सेइंग दैट एवरी डे दे हैव टू गो एटलीस्ट 3 kilometers वन वे टू फेच 2 pots ऑफ वाटर, एंड देयर आर टाइम्स व्हेन दे हैव टू वेट all through the night, especially March to June, that time, all through the night deep in the jungle, so that there is water that comes up and which they can then fill their pots and then walk back. So a lot of times they have serpent bites or snake bites, they have attacks by animals there, and there are even pregnant women who have to carry pots of water on their head and walk these 3 kilometers every day. So 3 kilometers up and down, so 6 kilometers. It's यही है पानी का मैराथन की जो एक बच्ची अपनी माँ से सीखती है, वो सिर्फ एक बच्ची है, लेकिन पानी लाने के लिए अपनी माँ के साथ घर लाद कर मीलों पैदल चलने की कोशिश करती है। वो गिरती है फिर उठती है, उसकी माँ की आंखें नम हो जाती हैं। उस माँ का दर्द समझिए। पानी के लिए माँ बेटियां क्या क्या करती है, क्या क्या संघर्ष करती है। इसलिए मैं
खुद आपको बताना चाहूंगा, एक ये जैसे कहते हैं ना कि ये वाटर मैराथन है, मतलब इनकी कहानी मैंने सुनी, मैंने कईयों की कहानी और भी स्टेट्स में सुनी है जो मीलों मील चलते हैं, मतलब जैसे मैंने आपको बताया 20-20, 22-22 किलोमीटर चल के सिर्फ फिर मतलब सिर्फ एक पानी के बकेट लाने के लिए, एक घड़ा लाने के लिए उन लोग चलते हैं। तो आज मैं चाहूंगा कि मैंने इनको नेटवर्क 18 को कहा था कि एक ट्रेडमिल लाया जाए इधर, और उस ट्रेडमिल पे मैं वो 21 किलोमीटर या 20 किलोमीटर चलना चाहूंगा। नहीं, वो ताली की बात नहीं, मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं आई वांट टू एक्चुअली फील व्हाट इज गोइंग टू हैपन टुडे, कि मतलब, और वो तो मैं आपको बताऊं कि वो जो चलती हैं वो तो वहां चलती हैं जहां की सनलाइट करीबन मतलब जो द कंडीशन मस्ट बी समवेयर अराउंड 40-42 डिग्रीज, इतनी गर्मी होती है, प्लस नंगे पैर चलती हैं, प्लस कंकड़ होते हैं, कांच होते हैं।